مظہر عباس صاحب آپ کی طرف یہی سوال لے کے آنا چاہوں گی. آج بہت سے ہم نے نمبر سٹارٹس فگرز دیکھے, بلاول صاحب نے اسکرین کے اوپر پیش کیے, اس سے تو ایسا لگتا ہے سندھ بہت ترقی کر رہا ہے. کیا واقعی میں سندھ کی جو عوام ہے اس کو یہ سارے ثمرات مل رہے ہیں؟ دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے جو ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریزنٹیشن دی, اور جس طرح شہزاد کہہ رہے تھے اچھی بات ہے کہ ایک کمپٹیشن نظر آتا ہے بٹوین ڈفرینٹ پروونشل گورنمنٹس, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. گورننس کے حوالے سے سندھ پر بڑے سوالات ہیں کہ اچھی گورننس سندھ میں ہوتی ہے نہیں ہوتی. جو ایک چیز کا خیال ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ سندھ میں پچھلے 17 سال سے حکومت ہے سندھ کی. تو جو ہم فیکٹس فگرز بتاتے ہیں اگر ہم 17 سال کے سامنے رکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا کام نہیں ہوا. یعنی ایون ہیلتھ کیئر میں اگر آپ دیکھیں 17 سال میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں, آپ جو بڑے گورنمنٹ بہت سے ہاسپٹلز بنے ہیں, بہت امپرووڈ ہیں سچویشن. جو NIVCD ہے یا SIUT ہے, یہ وہ ادارے ہیں جو واقعی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے اور بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں. اسی لیے وہ اکثر مثال گمبٹ ہاسپٹل کی دی جاتی ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے انڈر ہاسپٹلز ہیں ان کی ہم کنڈیشنز دیکھیں تو وہ ہمیں نہیں اچھے نظر آتے. آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں, آپ عباسی شہید چلے جائیں, آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں, آپ لیاقت میڈیکل جامشورو چلے جائیں, آپ چانڈ کا میڈیکل چلے جائیں, جو ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی, اور اس میں صرف کوئی خاص شعبے کی وجہ نہیں ہوتی. جیسے OPD ہے, OPD میں اگر ان سارے ہسپتال دیکھیں تو لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں, اور بالکل یہ عام آدمی کا ہاسپٹل ہے, یہ کوئی پریولیج کلاس کے لوگوں کا ہاسپٹل نہیں ہے. تو اس میں جس طریقے کی چیزیں ہونی چاہیے اس طریقے کی چیزیں ابھی تک نہیں ہیں. ایجوکیشن میں لے لیں, ایجوکیشن میں کتنے لوگ ابھی بھی اسکول جانے کی ایج میں ہیں لیکن اسکول ایجوکیشن نہیں ہے اویلیبل. اس میں ہم دیکھیں کہ کیا اسکولز جو ہماری اسکول کا اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو کمپیٹ کر رہا ہے, تو جواب نفی میں ہمیں ملے گا. ایون کالج یونیورسٹیز لیول پر اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی بھی ہماری سندھ کی یونیورسٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل اس میں ایرینا میں نہیں ایگزسٹ کرتی, جبکہ ایک زمانے میں ہوتے تھے. میڈیکل کالجز, میڈیکل یونیورسٹیز ہماری ایسی ہوتی تھیں. تو اگر اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں, اور پھر یہی ہے کہ یہی نہیں, ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, جو منسٹریز 18ویں ترمیم کے بعد ملی پروونشل گورنمنٹس کو, ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے اس کو ہم. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان سے وہ منسٹری چھین لیں, آپ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کر دیں. یہ اس کا حل نہیں ہوتا, کیونکہ جب وہ وفاق کے پاس تھی تو اس کی پرفارمنس کون سی اچھی تھی. وفاق کی پرفارمنس بھی اتنی پیتھیٹک رہی تھی اس میں. تو کام پروونشل گورنمنٹس سے ہی کرنا ہے, لیکن پروونشل گورنمنٹس کو اکاؤنٹیبل کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ امپروو کریں. تو سچویشنز اگر آپ خود بلاول بھٹو جائیں, عام آدمی کے درمیان جائیں اور خود پوچھیں اس میں کہ وہاں کے اسکولز کے کیا حالات ہیں, اور میں گورنمنٹ اسکولز کی بات کر رہا ہوں, میں پرائیویٹ اسکولز کی بات نہیں کر رہا, ان کے کیا حالات ہیں, کتنے حالات بہتر ہوئے ہیں یا وہ ہے. تو اگر عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی تو ظاہر ہے کوئی بھی پروپیگنڈا چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو یا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہو وہ کامیاب نہیں ہوگا. لیکن اگر عام آدمی کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی, اگر اچھی گورننس لوگوں کو نہیں نظر آئے گی, اگر ٹرانسپورٹ کے ایشوز کمپلیکیٹڈ ہوتے نظر آئیں گے اس میں, اگر سڑکیں اسی طرح ٹوٹی پھوٹی نظر آئیں گی لوگوں کو, اور خود بلاول بھٹو, میں سجیسٹ کروں گا کہ بلاول بھٹو شوڈ ٹریول بائی روڈ. آپ پنجاب سے سندھ میں داخل ہو, آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے, آپ آ جائیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس چیز میں. تو یہ اس میں تنقید کا پہلو نہیں ہے, اس میں تعمیر کا پہلو ہے. چیزیں سیکھتا ہے آدمی, جہاں امپروومنٹ کم ہوتی ہے وہاں امپروومنٹ زیادہ, آپ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک کمپٹیشن کی وجہ سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں کچھ. لیکن میں نے پھر کہا کہ اگر میں اس کا وہ دیکھوں کہ 17 سال بہت ہوتے ہیں چیزوں کو بہت بہتر بنانے کے لیے, تو اس کو اگر سامنے رکھیں تو شاید گورننس کے معاملات اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں آج بھی مسائل اسی طرح
जू के दू खड़े हुए हैं। सर आपने तो नेशनल हाईवे या हाईवेज़ पर ट्रैवल करने का कहा ना बिटवीन सूबों के, लेकिन कराची की सड़कों पे तो ट्रैवल करते ही होंगे सर, वहाँ पे इतने खड्डे हैं, वहाँ का भी नहीं नोटिस लिया जाता। मैं क्योंकि इसको कराची से स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये बात की। आई एम श्योर उधर भी अगर चले भी जाते हैं तो बहुत से लोग हैं जो उनको रिपोर्ट देने वाले होते होंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है, यहाँ पर मसले मसाइल हैं, यहाँ पर पैचेज हैं। लेकिन ये कराची की मतलब शहर की सड़कें तो एक कांस्टेंट मसला है ना, यहाँ पे तो ट्रैवल करते हैं। अभी पीछे भी बिलावल साहब आए हुए थे, नहीं अभी तो मुझे ट्रैफिक भी माशाल्लाह 2-4 घंटे उन्होंने बंद रखा। मुझे किसी और ने नहीं, मुझे नूरुल हुदा शाह साहिबा ने बताया कि जब वो मुल्तान से, पिछले साल की बात है, तो उन्होंने कहा जब मैं मुल्तान से, वो सखर में लिटरेचर फेस्टिवल था, वो गालिबन मुल्तान में गई हुई थी, तो वो कहने लगी मुल्तान से जब मैं सखर में आई तो मुझे फ़र्क पता चल गया। अच्छा जी भट्टी साहब, सर अगर ऐसा ही है कि अवाम की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ा या अवाम खुश नहीं है, तो फिर इतने अच्छे नंबर्स कैसे हैं? क्या आप समझ रहे हैं बिलावल साहब के दावे दुरुस्त हैं या कारकर्दगी के एटलीस्ट उस पर प्रेशर बढ़ रहा है? अब पहली बात तो ये है मैडम शेख कि क्या बदनसीबी है कि ये भी तारीफ़ करनी है कि बिलावल भुट्टो ने आज अपने 2-2.5 घंटे दे दिए। माशाल्लाह जी, कुर्बान जाऊं जी, आपने सब 2-2.5 घंटे दे दिए, और जो हमारा खून निचोड़ लिया है आपके प्रोटोकॉल्स ने, आपके गाड़ियों ने, आपके पेट्रोल ने, आपके इन सारी चीज़ों ने। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अपनी नस्लें दे चुके हैं आपको। आप 2 घंटे दे दिए हैं तो कमाल कर दिया आपने। 17 साल क्या, इनको 70 साल भी मिल जाएं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम शेख 17 साल से तो सिंध में हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी की। भुट्टो साहब भी हम पर हुकूमत कर चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी 2 मरतबा हुकूमत कर चुकी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हुकूमत कर चुके हैं, राजा परवेज़ अशरफ भी हुकूमत कर चुके हैं। इस बार मुस्लिम लीग नून के साथ ये इत्तेहादी हैं। सदर जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदारत भुगता रहे हैं। मैं आसफ़ा भुट्टो साहबा के खातून अव्वल और बिलावल भुट्टो के वज़ीर ख़ारजा की छोड़ दीजिए वो बात। अदादो शुमार के तो बादशाह हैं मैडम शेख ये लोग, कागजी कार्रवाइयों के तो ये बादशाह हैं। पहले मुझे बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं कि 8 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम मंजूर हुई, जिसका दर्द अब जाग गया है। ये 2 क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आने की बातें हो रही हैं और उसमें नए सूबों की बात हो रही है, उसमें 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम की बात हो रही है, पैसों में कटौती की बात हो रही है, इसलिए 2 घंटे दिए हैं। ये कोई अवाम के या सिंध के दर्द में 2 घंटे नहीं दिए। और मैडम शेख 8 अप्रैल जैसा मैं कह रहा था 2010 को 18वीं तरमीम मंजूर हुई, 15 साल हो गए। आपने मुफ्त तालीम देनी थी, सिंध के बच्चों को सारों को मुफ्त तालीम मिल रही है। आपने मुफ्त सेहत की सहूलतें देनी थी, सारे सिंध के बच्चों को, सारे सिंध के लोगों को मुफ्त सहूलतें मिल रही हैं सेहत की। आपने सूबाई फाइनेंस कमीशन के इजलास बुलाने थे और शहरों को देख कर के किस शहर में किस चीज़ की ज़रूरत है उनको बजट एलोकेट करना था। आपने कर दिया। आपने एक बेस्ट बल्दियाती निज़ाम देना था, जो मरकज़ ने आपको इख्तियारात दिए थे मुंतकिल करने थे, आपने कर दिए। क्या कराची का ये जो बल्दियाती इलेक्शन था ये फेयर था? क्या मुर्तज़ा वहाब साहब जो असली मेयर हैं कराची के, और बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं, अभी इस इलेक्शन मंशूर में आपने वादा किया था बिलावल साहब कि तनख्वाहें डबल कर दूंगा, सिंध की हो गई डबल तनख्वाहें, और 300 यूनिट भी मुफ्त कर दूंगा, हो गई बिजली मुफ्त, गरीबों बेज़मीनों मेहनत कशों को रेशी मकान दिए जाएंगे, कितनों को मिले हैं? स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना फराम करेंगे, कितने खा रहे हैं मुफ्त बच्चे स्कूल खाना खा? हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड। और बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं, 1970-71 में आपके नाना रोटी कपड़ा और मकान के ख्वाब बेच रहे थे, आज 2025 में आप रोटी कपड़ा और मकान के ख्वाब बेच रहे हैं। सिर्फ लड़काना को मुझे बताएं कि रोटी कपड़ा और मकान मिल चुका है सिर्फ लड़काना के लोगों को। और मैडम शेख अभी मैं 3 रिपोर्टें पढ़ रहा था सिंध की तालीम पर जी, जिसमें BBC की भी रिपोर्ट थी। पुराना तर्ज तालीम, खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की कमी, घोस्ट असातिज़ा का तरबियत याफ्ता ना होना, सियाजी समाजी बेहिसी पता क्या वो है कि एलीट क्लास के पॉलिसी मेकर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते ही नहीं हैं। जो थोड़ा सा वेल ऑफ है या जो सियासत में है या जो है वो तो इधर आते ही नहीं है।
अच्छा, फिर मेरिट पर असातिज़ा का ना आना, 60% स्कूलों में साफ पीने का पानी ना होना, बाथरूम नहीं, खेल के मैदान नहीं। फिर बिलावल भुट्टो साहब मुझे बताएं यार, खुदा के लिए किसको बेवकूफ़ बनाते हो? सिर्फ कराची को आप पानी नहीं अभी तक दे सके, सिर्फ कराची। 35 साल से आप और एमक्यूएम ने कराची पे राज किया और क्या दिया कराची को? भत्ते, तावान, कत्लो गारत और ये टूटी सड़कें। और एक बारिश आ जाए तो फिर आपको कहना पड़ता है कि बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। और फिर बिलावल भुट्टो साहब मुझे ये बताएं कि आखिरी बार वो कब किसी 2-3 मुझे बता दें, 3 दौरे उन्होंने सरकारी स्कूलों के किए हों आखिरी बार। और मुझे बता दें कभी वो किसी सरकारी अस्पताल में वो या जरदारी साहब लेटे हों, जाकर उन्होंने खुद इलाज करवाया हो। मैडम शेख, अभी मैं पढ़ रहा था कि ठट्ठा और बदीन पानी की कमी और नमकीन ज़मीन की वजह से वीरान हो रहा है। और अभी हम चंद माह पहले बात कर रहे थे कि मरने से पहले दवाई नहीं है, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं है। करप्शन का हाल मैं छोड़ देता हूं, वो छोड़ दीजिए जो सिंध में हो रहा है। आपको बिलावल भुट्टो साहब, मेरी आखिरी बात, आपको क्यों लगता है कि जब भी कोई ऐसी बात हो जो सारे सूबों पर अप्लाई होनी हो, वो आपके सिंध पे डाका पड़ गया है? आपको 26वीं 27वीं यानी तरमीम अदलिया पर डाका नजर नहीं आया? आपको इस 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का डाका नजर नहीं आया? आपको मखसूस नशिस्तों का डाका नजर नहीं आया? आपको इलेक्शन एक्ट में तरमीम धांधली पर डाका नजर नहीं आया? आपको नैब तरमीम, वो सारे जो चोर सारे मुबैना तौर पर थे सारे बच गए, वो एहतसाब पर डाका नजर नहीं आया? मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे, आपको डाका नजर नहीं आया? सिंध कार्ड, सुबाइयत कार्ड, अब ये पुराना हो गया है यार, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम ये खेल 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 के तंग आ गए हैं। अब ये करना पड़ेगा, या आपको 15 साल हो गए, आप नहीं डिलीवर कर सके, आप नहीं परफॉर्म कर सके, आप नहीं लोगों तक पहुंचा सके, आपकी जमहूरियत जाली निकली है, आपके नारे सिर्फ कागजी नारे हैं, अब इन प्रेजेंटेशंस का कुछ नहीं होता। और ये खुश नसीबी है बिलावल भुट्टो साहब की आखिरी बात कि यहाँ परफॉर्मेंस पर वोट नहीं मिलते, यहाँ परफॉर्मेंस पर एहतसाब नहीं होता, वरना सिंध में आज पीपल्स पार्टी कहीं भी नजर ना आती। वैसे ही सुकड़ सुकड़ के सिंध में आ गई, लेकिन कहीं भी नजर ना आती।